انا کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ یہ چیزوں کو جیسی وہ ہیں ویسا نہیں دیکھ پاتی، اور اس کے پیچھے بڑی سائنسی وجہ ہے۔ تمہاری انا تخلیق ہے تمہارے مائنڈ کی، اور مائنڈ بنتا ہے حواس کے جمع شدہ مواد سے۔ انا کو اور مائنڈ کو سمجھنے کے لیے تمہیں لازماً یہ جاننا پڑے گا کہ حواس کیسے کام کرتے ہیں۔ حواس کے کام کرنے کا طریقہ جان لینا ان اٹ سیلف کافی ہے اس سمجھ تک پہنچنے کے لیے کہ مائنڈ اور ایگو کام کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہی بیسیکلی وہ دو بنیادی ٹول ہیں جس سے تم زندگی کو تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی اس حقیقت پر تم نے غور کیا کہ ایک چیز جو اپنی آنکھ سے تم دیکھتے ہو اس کو اپنے مائنڈ تک پہنچاتے کیسے ہو؟ تمہاری یادداشت کا وہ حصہ کیسے بنتی ہے؟ تم جس بھی چیز کو دیکھتے ہو اس کا ایک الٹا عکس تمہاری آنکھوں کے ریٹینا پر بنتا ہے۔ تم کبھی بھی باہر موجود کسی چیز کو نہیں دیکھتے، بلکہ تم ہمیشہ ہی اس الٹی تصویر کو دیکھتے ہو جو آنکھ کے پردے پر بن رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو جو آئینے میں تصویر بن رہی ہوگی وہ ہمیشہ الٹ ہوگی۔ تم مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو آئینے میں موجود جو شخص ہے وہ مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوگا۔ کیا تم یہ پوائنٹ سمجھ پا رہے ہو؟ جو بھی ڈیٹا حواس کے ذریعے سے دماغ میں سٹور ہو رہا ہے وہ سارا الٹ ہے، اصل کے برعکس ہے۔ اب اسی مائنڈ سے تم خواہشوں کی، منزلوں کی، اہداف کی پوری ایک سیریز بناتے ہو اور اس کو زندگی بھر فالو کرتے ہو۔ کیا اس پروسیس سے ریئلٹی کو، حقیقت کو جانا جا سکتا ہے؟ اس کو ذرا اور سادہ کر کے دیکھو۔ تم امیر آدمی بننے کا خواب دیکھتے ہو، کروڑ پتی ہونے کو منزل بناتے ہو، تو اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ اس کے لیے تم کسی ایسے شخص سے متاثر ہوتے ہو، اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو جو کروڑ پتی ہو، جو کسی فیلڈ میں کامیابی کی معراج پر ہو۔ اب تمہارا مائنڈ کیا کرتا ہے؟ اس شخص کی تصورات میں ایک تصویر بناتا ہے، اور یہ قطعاً بھی لازم نہیں کہ جو تصویر تم نے اس کی سوچی ہے وہ شخص زندگی کا اپنا تجربہ ویسا ہی کر رہا ہو، کیونکہ تمہارے جس ٹول نے اس کی تصویر بنائی ہے وہ اپنی بنیادی نیچر میں فالٹی ہے۔ تو اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کو تم کامل کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تصویر جو تمہارے دماغ نے محفوظ کی ہے وہ اس شخص کی تصویر نہیں، وہ اس پرسیپشن کی عکاسی ہے جو تم نے اپنے فالٹی حواس اور فالٹی مائنڈ کی مدد سے تراشی ہے۔ یہ مائنڈ کی نیچر ہے، یہ سینسز کی، حواس کی نیچر ہے کہ اس میں چیزیں ہمیشہ الٹی ہی پرسیو ہوتی ہیں۔ اب ان ساری الٹی پرسیپشن سے حاصل شدہ ڈیٹا جمع ہو کر بنتا ہے تمہارا مائنڈ، اور وہی مائنڈ ہے تمہاری انا کا خالق۔ کیسے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انا کیا ہے؟ حواس کا مجموعی ڈیٹا جو تم نے سنا ہے، جو تم نے دیکھا ہے، جو تم نے چھوا ہے، جو چکھا ہے، جو سونگھا ہے، وہی تو تم ہو۔ تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے، یہ تمہارا نام کیسے ہے؟ کیونکہ تم نے سنا ہے، ماں باپ نے تمہارا ایک نام رکھا اور پھر اسے تمہارا لیبل بنا دیا۔ اتنی بار تمہیں اس نام سے پکارا کہ تمہیں بھی یقین ہو گیا کہ تم یہی نام ہو، ورنہ سوچو تمہارا نام اور تم میں کیا تعلق ہے؟ تمہارا نام تم کیسے ہو گیا؟ تمہیں بتایا گیا تم مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، اور اتنی بار بتایا گیا کہ تمہیں یقین ہی ہو گیا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو۔ تمہیں بتایا گیا کہ تم امریکی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، اور اتنی بار تمہیں یہ بتایا گیا کہ تمہیں بھی یقین ہو گیا کہ تم امریکی ہو، پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو۔
ऐसे ही तुम्हारी ज़ात, बिरादरी, फिरके, स्टेटस का इल्म है जो तुमने दूसरों के कहे से जान लिया कि ये तुम हो। यही सारी सुनी सुनाई इंफॉर्मेशंस मिलकर तुम्हारी अना बनाती है। परसोना, तुमने खुद को छूकर खुद को गोश्त पोस्ट हड्डियों का माना हुआ है। तुमने चीज़ों को चख कर किसी को तुर्श, किसी को मीठा माना हुआ है। तुमने सूंघ कर किसी को खुशबू, किसी को बदबू कहा हुआ है। मजमूई तौर पर तुम्हारे हवास की सारी परसेप्शंस मिलकर तुम्हें वो बनाती हैं जिसे तुम समझते हो कि ये तुम हो। हवास का हासिल शुदा डेटा मिलकर तुम्हारा माइंड बनाता है और माइंड तुम्हारी अना को तश्कील करता है। इसी अना से फिर तुम खुद को खुद के तौर पर पहचानने लगते हो। जिसे तुम मैं कहते हो वो इस अमल के जरिए से बनती है। और हमने बात शुरू की थी यहाँ से कि हवास जिस भी चीज़ को परसीव करते हैं असल में चीज़ें उसके बरक्स होती हैं। तुम एक दरख्त को दरख्त के तौर पर सीधा देखने का भरम पालते हो, डिल्यूजन पालते हो। हकीकत मगर यह है कि तुमने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी दरख्त को सीधा नहीं देखा है, हमेशा उलट देखा है। क्योंकि तुम्हारे आंख के शीशे पर जो उल्टा अक्स बन रहा है, तुम्हारा दिमाग उसी उल्टे इमेज को ही दरख्त कह रहा है। जैसे तुम आईने में खड़े शख्स को खुद समझ रहे होते हो जिसका रुख मगरिब की तरफ, जबकि हकीकत यह है कि तुम्हारा रुख मशरिक की तरफ होता है। यही तुम्हारे हवास की नेचर है। इसके ज़रिए से जो भी तुम परसीव करते हो वो उलट होता है और यही उल्टे परसेप्शंस मिलकर तुम्हारा माइंड बनाते हैं। और इन्हीं उल्टी मालूमात से मिलकर बना तुम्हारा माइंड तुम्हारी वो मैं, वो ईगो तश्कील देता है जिसे तुम अपना आप कहते रहते हो। यही अना की नेचर है। अना हमेशा तुम्हारी असल हकीकत के बरक्स होती है। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि अना तुम्हारा वो रूप है जो तुम्हारे असल रूप को हमेशा झुटलाने के लिए सरगर्म रहता है। अना को सर्व करने के लिए जो भी कुछ तुम कर रहे हो वो तुम अपने लिए कर ही नहीं रहे हो, बल्कि अपने आप को छुपाने के लिए कर रहे हो। यही वो बेसिक फॉल्ट है जो तुम सारी जिंदगी जीते हो। तुम अपने ताल्लुकात को देखना, दफ्तरों को देखना, सियासतदानों को देखना, अपने मीडिया को देखना, सोशल मीडिया को देखना, अपनी बोलचाल को देखो, अपने कपड़ों को देखो, अपने रहने सहने के ढंग देखो। ये सब ये नहीं बता रहे कि तुम क्या हो, बल्कि ये सब कुछ छुपा रहे हैं कि तुम अपनी असल में क्या हो ये पता ना चल जाए। तुम जब किसी महफिल में जाते हो और अपना बेहतरीन लिबास, अपनी बेहतरीन खुशबू, अपने बेहतरीन जूते निकाल कर पहन कर साफ सुथरे करके जाते हो, सोचो उस वक्त क्या कर रहे होते हो। तुम जो हो उसके मुकाबले में कुछ और होकर उस महफिल में जाना चाहते हो ताकि तुम जो हो वो तुम्हें लोग ना देख सके। तुम जो घर में पहनते हो वो पहनकर ऑफिस क्यों नहीं जा सकते? पार्टियों के लिबास और घर के लिबास में ये फर्क क्यों है? तुम पार्टी में वो क्यों नहीं बन के जा सकते जो घर में तुम सारा दिन बने रहते हो? तुम्हारी अना की इसी नेचर को टीवी, अखबारों के इश्तिहारात एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी तरीके से तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस चलाती हैं। ये कंपनियां तुम्हारी बसीरत की रोशनी में अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, बल्कि तुम में मौजूद बेसिक फॉल्ट को जहन में रख कर ये प्रोडक्ट्स तैयार की जाती है। तुमने कभी गौर किया है कि तुम जिन्हें अशरफुल मखलूक होने का ज़ोम है उन्हें कैसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है? तुम्हें किसी भी तरह का खाना रंग बिरंगी प्रोडक्ट के साथ खिलाया जा सकता है, लेकिन तुम किसी गाय के सामने कोई कीमती बर्गर रख कर देख लो, उसे तुम खाने पर मजबूर न कर सकोगे। मगर इंसान को कुछ भी खिलाया जा सकता है। बस ये बता देना काफ़ी है कि प्रोडक्ट कितनी बड़ी कंपनी की है। क्या वो गाय तुमसे कम ज़हीन है कि जिसे पता है कि उसके लिए किस ग़िज़ा में न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जबकि तुम जिन्हें ज़हीन होने का दावा है वो हर किस्म की ग़िज़ाएँ ठोंस रहे हैं कि जिसमें कोई भी ग़िज़ाई अहमियत है ही नहीं। तुम्हारी अना को तुम्हारे जिस्म के तकाज़ों की परवाह ही नहीं है, उसे बस एक बात की परवाह है कि तुम क्या खाओगे तो अमीर लगोगे, मुअज़्ज़िज़ लगोगे।
अपने घर में मौजूद चीज़ों की लिस्ट बनाओ कभी और गौर से उसे देखो। उसमें शायद एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो तुम्हारी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरत हो। ये सब तुम्हारी अना की ज़रूरतें हैं। अना चूँकि इन इट सेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये चीज़ों लेबलों से एक होकर कोई चीज़ बनती है, तो इसकी ताकत चीज़ों में, लेबल्स में छुपती है। इसलिए अना को तुम्हारा नाम चाहिए, ओहदा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बड़ा घर चाहिए, रुतबा शोहरत चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, अना उतनी ही ज़्यादा ताकतवर फील करेगी। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को जो चाहिए वो बहुत ही कम है। तुम सारी ज़िंदगी कोशिश करते हो इस अना को भरने की, मगर भर नहीं पाते। क्यों? ये अना की नेचर है। वो एक चीज़ पा लेती है, कुछ दिन उस पर फूलती है, फख्र करती है और फिर उससे उकता जाती है। तुम जितना बड़ा घर बना लो, कुछ ही दिन बाद उससे लुत्फ अंदोज होना छोड़ देते हो, उससे बड़ा घर ढूंढने लग जाते हो। उसकी वजह ये नहीं कि पिछला घर अब नाकाफी हो गया है, उसकी वजह बस इतनी है कि अना को अब कुछ और चाहिए कि जिससे वो चिमट सके। अपनी नौकरियों को देखो, दिल पसंद नौकरी मिल जाए तो कुछ दिन अना बड़ी खुश होती है, फिर वो नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है। फिर अना को या तो प्रमोशन चाहिए होता है या नई नौकरी। कुछ भी अपनी जिंदगी में उठा कर देख लो, उसकी नेचर यही मिलेगी। इस पर कभी तुम गौर क्यों नहीं करते? अना एक ऐसा बेपेंदा बर्तन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, और तुम उसको भरने की कोशिश में लगे हो। अना को इस कायनात की कोई भी चीज कभी नहीं भर सकती। अना का बर्तन चाहे भिखारी का है या बादशाह का, उसमें हल में मजीद की सदा हमेशा गूंजती रहेगी। तुम्हारी अना के फाल्टी होने के लिए क्या ये सबूत काफी नहीं है? अब अगर अना फाल्टी है तो राइट क्या है? वो जो शीशे के सामने खड़ा है वो है राइट। वो जिसने नाम के लेबल को कबूल किया है वो है राइट। जिसने मजहब, फिरके, कौमियत, रंग, नस्ल, बिरादरी, स्टेटस के लेबल को माना है वो है हकीकत। तुम उसे रूह कहो, बीइंग कहो, हस्ती कहो, उसे तुम जिंदगी कहो, या फिर तुम उसे कहो खुदा। वो है तुम्हारी हकीकत, और इस हकीकत तक तुम सीधे पहुंच सकते हो, उल्टे नहीं। अना तुम्हारा अपोजिट अक्स है। वो जितना भी इस हकीकत की तरफ जाने का ड्रामा रचाती रहे, वो हमेशा इससे दूर होती रहेगी, क्योंकि वो खड़ी ही उल्टी तरफ रुख करके है।